Cool. So what we are going to do today is it's this session is all about appetite, cravings, food noise that we always have in our mind, whether हमारा मतलब मूड अच्छा है, खराब है, खुश हैं तो भी खा रहे हैं. We somewhere our life revolves around food, somewhere our life, ends up with food only. This is the one thing that keep on making noise in our mind, and that's called the food noise. Always like, ये खा लेते हैं, वो कर लेते हैं, यहाँ पे बर्थडे आ रहा है तो अब इस जगह पे जाएंगे, वीकेंड आ रहा है, we will explore this restaurant or the new place. Do we think about this or not? This thought is always there in everyone's mind. Those who are saying that no, I don't believe it. Once or other, like, everyone has this thought in their mind, but उसके पीछे reason क्या है? We have to master our hunger hormones. We have to master our hunger. We have to fix our appetite. And there is a practical guide. It's not just for GLP people, but for everyone who go through lots of ups and down. And we have to learn to work with our body, with our mind, and not against it. It's not about feeling yourself deprived. हमें अपने आप को ऐसा महसूस नहीं कराना है कि हमें कुछ किसी चीज का एक्सेस नहीं है या availability nahi hai. It's all about just bringing that balance which we all need. But how will we bring that balance? It's a big question. Now, today's session, what we all will be learning that what is hunger, what is appetite, and what is craving, how these both are different with each other, and what is food noise? Why we, hear this noise all the time? How GLP-1 changes your brain and your thought process and your cravings and your body's reaction towards food. तो ये सब कुछ interrelated है. Whether we talk about कि cravings क्यों हो रही हैं या emotional cravings क्यों होती हैं या फिर physical hunger हमें क्या समझना है उससे. Why both the reason of reaching out to the food is different, right? Again, what are the practical strategies on the day to day basis that can help us in eating in right, quantity and the portion and making the right decision overall? Because we somewhere absolutely slip and couldn't understand and relate what is going on. और हमें ये इतना भूख क्यों लग रही है, हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, एंड वी स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट गिल्ट जोन की हाय क्यों खाया, नहीं खाते, अच्छा था, खा नहीं खाते तो अच्छा होता, अब खा लिया है. It's like okay if you cheat but then try to address the root cause. क्यों ये mistake करी हमने? What was the reason which has triggered? If we just sit and think back, okay, क्या reason था, क्यों हम cheat कर रहे थे, उस टाइम पे क्या हुआ था ऐसा कि हमें ये cheat करा, तो आपको आंसर मिल जाएगा. And next time your brain will automatically alert you because you have addressed the root cause. Now your brain will automatically alert कि अच्छा, लास्ट टाइम ना जब मेरे को गुस्सा आई थी ना, बॉस से झगड़ा हो गया या कुछ भी हुआ, मेरे को गुस्सा आ गया था, तो आई एंड अप ईटिंग द एंटायर पेस्ट्री और 3 pieces ऑफ केक, कुछ भी मैंने ऐसे खा लिया. बट रीजन क्या था? मुझे गुस्सा आया था. नेक्स्ट टाइम मुझे कैसे अपने गुस्से को अवॉइड करना है या कहाँ मुझे अपने आप को डाइवर्ट करना है, सो दैट आई डोंट जस्ट थिंक अबाउट द फूड बट आई थिंक अबाउट कि मुझे वो क्रेविंग क्यों आई. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फाइट happened between the boss and the other colleagues or with you. उसकी वजह से गुस्सा आया था, बट वो गुस्सा हमने किसको नुकसान किया? दैट हैज आल्सो इम्पैक्टेड अस. वो बंदे ने हमें खराब बोला, दैट आल्सो एग्रीवेटेड more anger in us and sort of developed that craving. Plus, after that we had wrong food. There also we are making only our loss. It's our loss that we are eating wrong calories impacting our health. तो कंफर्ट तो नहीं आया, बट गिल्ट अलग से आ गया. सो हमें कैसे फिक्स करना है? वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट वी नीड टू डू इज जस्ट फिक्सिंग द रूट कॉज. आज अगर मुझे पता है कि मैं इस रोड पे जाऊंगी, आगे गड्ढा है, अगर मैंने ब्रेक नहीं लगाया तो मेरी गाड़ी बाउंस करेगी या मैं गिर सकती हूँ या मुझे चोट लग सकती है, आई विल बी माइंडफुल नेक्स्ट टाइम. इवन दो वो रोड ठीक भी हो जाएगी तो भी मैं माइंडफुल रहूंगी. यस और नो? ऐसा होता है ना, व्हेन वी आर अवेयर कि आगे इफ वी डू दिस तो ऐसा कुछ हो जाएगा, वी आर ऑलवेज लाइक मोर अवेयर, वी आर ऑलवेज मोर concerned and always more alert that oh, this is something that we have to be careful about. And that's what we need to do. Address the concern. I'm sure automatically your brain will guide you. It's okay to slip 1 or 2 times, but then with practice over the period of time, you will automatically get the hold
and the control on yourself, on your thoughts, and you will divert yourself in the right direction. So, this is what we will be learning today in detail. And again, what to eat when the appetite is low, what to eat to prevent muscle loss, what to eat to prevent any sort of to avoid any sort of complications or the side effects that GLP brings, or even that eating wrong food brings. Because GLP तो बस नाम का है बदनाम, अदरवाइज हम तो रोज कितनी सारी चीजें करते हैं जो हम अपने बॉडी में उल्टा फुल्टा डालते रहते हैं एवरी वीक. वी डोंट इवन थिंक अबाउट इट कि उसके कितने साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं. राइट, वी थिंक, वी डोंट थिंक दैट टाइम व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज द प्लेजर. मजा आ रहा है खा करके, अच्छा लग रहा है. राइट, दिस इज व्हाट इज ऑलवेज देयर इन आवर माइंड. सो टुडे वी विल बी एड्रेसिंग एवरीथिंग. एंड व्हाट आई बिलीव इज दैट इंस्टेड ऑफ टेलिंग आवर सेल्फ कि ये नहीं करना है, हम जब भी अपनी बॉडी को बोलते हैं या माइंड को बोलते हैं कि ये नहीं करना है, माइंड ऑलवेज कीप्स ऑन चेजिंग दैट कि यही करना है अब तो. आज उसने ये बोल कैसे दिया कि आज ये नहीं करेंगे. अच्छा, उसने बोला कि ये चिप्स नहीं खाना है. अगर आप देखना अभी, अगर अगर कभी आपके माइंड में थॉट आए कि अरे यार ये चिप्स रखा है खा लेती हूँ, और आपने अगर माइंड को बोला कि नहीं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाना है मुझे, क्या होता है लास्ट में? एट द बाय द एंड ऑफ द डे कितना भी कंट्रोल कर करके हम वही सोचते रहते और खा लेते हैं. होता है कि नहीं होता आपके साथ? मैंने तो देखा है, बहुत बार होता है मेरे साथ तो, कि मैं सोचती हूँ कि नहीं खाऊंगी, फिर मैं खा लेती हूँ. तो उसके ऊपर कंट्रोल कैसे लाना है? दैट इज द क्वेश्चन. मना नहीं करना है अपने ब्रेन को, उसको रीजन देना है, उसको लॉजिक देना है. एंड व्हाट ब्रेन अंडरस्टैंड इज द लॉजिक. एक बार गड़बड़ होता है, अगली बार अपने आप ही ब्रेन अलर्ट कर देता है कि लास्ट टाइम किया था तो ऐसा हो गया था, अब नहीं करना है. राइट, सो दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न. एंड विच वन ट्रबल्स यू द मोस्ट? Number one, it could be anything for anyone. Like, I want the answers in the chat section. कि आपको सबसे ज़्यादा क्या trouble करता है? Is it that you don't feel hungry at all when you are on GLP? या फिर you crave sweets despite of GLP? या फिर I snack without realizing it कि मैं snacking कर गया, मैं काम कर रहा हूँ, so much of stress and सामने बिस्किट का पैकेट रखा है, unintentionally हमने खा लिया. राइट, और या फिर हम फूड के बारे में सारे दिन सोचते रहते हैं. I want the answers in the chat. What happens with you exactly? So that we can encounter and, you know, help you in understanding each and every concept in detail. Right? I want to hear from each one of you. Come on, you have a poll in front of you. Please let me know. I haven't started yet. Got it. But लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. GLP स्टार्ट किया नहीं किया, बट फिर भी हमारे साथ ऐसे सब चीजें होती है ना. I snack without realizing. Thank you, Shika. I think it's such an honest answer. When feel energyless, we crave sweet thing. Got it. Absolutely. तो हमें लगता है कि कुछ सबसे पहले कुछ ऐसा खा लो कि जिससे तुरंत एनर्जी मिल जाए. बट हम एनर्जीलेस क्यों फील कर रहे हैं, वो हमने कभी सोचा है? हमारी एनर्जी ड्रेन कब होती है? वी हैव लॉट ऑफ एनर्जी, बट कब ड्रेन होती है? You can't get craving. It's really painful. Okay. I didn't get your message, Pratik. Hey, I don't feel hungry at all. Right. Cool. So it doesn't matter whether you are on GLP or not, but ये सबके साथ होता है. Right. Everyone goes through these troubles. Like किसी किसी को भूख ही नहीं लगती है. Um, either they are on GLP or sometimes they are not on GLP, but they do not have the appetite. और भूख लगती भी है तो किस चीज की लगती है? Something junk, something spicy, something unhealthy. उसको देख करके आई थिंक ऑटोमेटिकली भूख लग जाती है. हाँ, बट GLP somewhere suppresses that call and the craving. नाउ सेकंड क्या होता है? आई क्रेव स्वीट्स डिस्पाइट मेडिकेशन. क्यों होता है? कैन एनीवन टेल मी? आई थिंक वी हैव डन एम्पल नंबर ऑफ सेशंस एंड एवरीवन कैन एड्रेस दैट कि अगर खाना खाने के बाद भी और GLP-1 लेने के बाद भी स्वीट क्रेविंग्स हो रही है, तो वो क्यों हो रही है? आई डोंट टॉक अबाउट मेडिसिन की मेडिसिन की डोसेज कम है इसलिए क्रेविंग्स बंद नहीं हो रही है. एब्सोल्युटली प्रतीक, इट्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रोटीन. इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वाटर. राइट, आई थिंक प्रतीक, लीना मैम, दीज आर फ्यू पीपल जो हर सेशन ज्वाइन करते हैं. अभी मास्टर कर लिया इन्होंने. आई थिंक किसी टाइम भी बोल दूंगी मैं तो दे कैन गिव द सेशन एंड रिप्लेस मी. सो एब्सोल्युटली, आपने प्रोटीन्स नहीं लिया, आप GLP ले लो. GLP इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर लाइफस्टाइल, है ना.
आपका जो लाइफ, आप हाउ डू यू स्पेंड दैट, हाउ डू यू लिव योर लाइफ, and what discipline you have in your life, GLP can help you in bringing that discipline. But if you're not eating adequate amount of nutrients, either we talk about the proteins, we talk about macronutrients, we talk about hydration, you will end up getting cravings. And what is why we get these cravings? I'm going to answer you in some time, but yes, let's understand. I snack without realizing. मैंने बताया stress है and we are working and जो सामने दिखा खा लिया, या we have given a long gap between the meals, whatever comes our way we eat it without realizing कि हम क्या खा रहे हैं, because उस time body is hungry and it needs food for energy. And few people, they keep thinking about the food all throughout the time. Why? Can anyone answer why? Why somebody keeps thinking about the food? एक बार पेट भर जाता है तो भूख नहीं लगती, राइट? इतना दिमाग में सारे दिन खाना खाना नहीं चलता रहता है, बट क्यों चलता है इन सच केसेस? Lack of nutrition, eating more, emotional eating. Mm, हाँ, when you are somewhere very very stressed out, you can say that. आप जब बहुत स्ट्रेस है या इमोशनली ड्रेन्ड है, आज तो कुछ लड़ाई हो गई या मेरे पसंद का कुछ हुआ नहीं, तो हम सारे टाइम फूड के बारे में भी सोच सकते हैं, एंड दैट हैपेंस बिकॉज आर you know the happy hormones are missing, and that is leading to the increase in your cortisol and the adrenaline, जो कि हमारे stress hormones है, and they are causing increase in your hunger hormones, leading you feel more craved for food and making you feel more hungry happens, right? So these are all somewhere related. Now understand what is hunger. We always say that जब भी भूख लग रही है वो हंगर है. ऑफ्टन आई गेट टू हियर फ्रॉम माई क्लाइंट्स, आते हैं और बोलते हैं, अरे नेहा अभी खाना खाया था लेकिन पता है मेरा पेट ना भरा नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग हंग्री अगेन एंड आई हैव टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर द बेड टाइम, वरना मुझे नींद नहीं आएगी बिकॉज ऑफ हंगर. आज क्या खाया था आपने डिनर में? एंड व्हेन आई गेट टू नो 1500 कैलोरीज जो पूरे दिन का टारगेट है वो हमने सिर्फ डिनर में खा लिया. अभी कैसे भूख लग सकती है? Absolutely लग सकती है, right? What is hunger? Hunger is the need of the body when you are somewhere, but that is something not a sign of a hunger, well I say. But yes, what is hunger? When you have when you are lacking the nutrition inside the body, you don't have enough glucose to support your day to day activities, you will feel hungry, and that's automatically natural indication and the signal of the body to crave for food, right? आप काम कर रहे हैं सारे दिन, योर एनर्जी इज ड्रेन, आपको भूख लग रही है क्योंकि आपका भूख का टाइम है. योर ब्रेकफास्ट, योर लंच, योर डिनर, या इन बिटवीन द स्नैक्स व्हाट वी ईट, दैट टाइम वी डेफिनेटली फील हंग्री. व्हाई? बिकॉज दैट्स द टाइम वी नीड एनर्जी. हमारे बॉडी में हमने खाना खाया, that food is absorbed, it is neutralized by the body. Now once it is done after 3 hours, automatically we will feel the hunger, and the natural, that is a natural thing body has, right? Empty stomach, हम लोग, we do feel like, just give me 1 second. I'm just sorry, just give me 1 second. Okay, I'm sharing my screen again, just let me know if you can see that. Visible to everyone? Okay, so वो हो क्या रहा है? As you are eating the food, that hunger is building up gradually. जैसे ब्रेकफास्ट, सुबह रात में खाना खाया था, सुबह उठे, naturally like your body feel that hunger, क्योंकि अब it's time, the body, like the stomach is empty, and that's a natural hunger that builds up over the period of time, and body is asking for food. Any food that appeals, you know it's not just our like favorite food, but still we are eating it. Why? Because we are hungry. Sometimes it also increases, rapidly or steadily, like आपने अभी खाना खाया बट छोटे अमाउंट में खाया या प्रोटीन्स कम था, थोड़ी देर में फिर से भूख लग जाएगी. क्यों लगेगी? क्योंकि satiety नहीं आई. There are two hormones. I think by now everyone has mastered that hunger hormones, which is the ghrelin, it makes you feel hungry. Second is your leptin, which makes you crave for food, right?
So these are, sorry, second is the leptin that gives you satiety value, right? So इन दोनों का balance is very important. आपने ग्रेलिन, आपको भूख लगी, आपने ग्रेलिन एक्टिवेट हुआ, आपने खाना खाया, आपको लेप्टिन रिलीज होना चाहिए सो दैट यू फील सेटिएटेड. बट अगर लेप्टिन रिलीज नहीं हुआ, यू हैव हायर लेप्टिन रेजिस्टेंस, व्हाट विल हैपन? योर बॉडी विल कीप ऑन फीलिंग दैट हंगर कॉन्स्टेंटली. एंड ये लेप्टिन रेजिस्टेंस कैसे होता है? हाउ वी मेक श्योर दैट द बॉडी गेट्स एक्टिवेटेड विद द लेप्टिन? इसको एक्टिवेट करने के लिए प्रोटीन्स चाहिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए गुड अमाउंट में फाइबर चाहिए. इफ वी आर नॉट हैविंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड फाइबर, leptin activate नहीं होगा and you won't get the signal in your brain that I'm full, I'm done. That's why we say make a discipline, right? Eat on time. And that is what hunger is. सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे भूख लगी, लंच में लगी, इवनिंग में लगी, रात में लगी. Natural way of eating the food because body need that energy to survive. Body need that energy to sustain our day-to-day chores. खाना खाने के बाद फिर से भूख लगी, that is not your hunger. That is definitely not a hunger, right? So we have to resolve that what we have eaten, whether we are eating in right time or not, whether we are following the circadian rhythm or not. अगर आपने अपनी body की circadian clock set कर दी, that okay, this is the time when I'm going to eat the food, your body will be accustomed to that and your mind will automatically give you the signal, and that's a natural hunger. Now coming to the next part, that what is appetite? Appetite is basically the desire to eat even without true hunger. आपको भूख लगी है नहीं लगी है, but appetite means it will make you crave for food. खाना खा चुके, घर से निकले, बाहर गए, रास्ते में आइसक्रीम शॉप दिख गई. ओके, अच्छा लग रहा है. आई थिंक आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दिस ब्रांड, इट्स रियली नाइस. लेट्स गो. एक आइसक्रीम तो आज खा ही सकता हूँ. सो द टेम्पटेशन दैट वी गेट, okay, let's eat one ice cream, because this is not a hunger, it's a temptation. It's the appetite, which is, bolte na, the stomach is like a balloon. The more you fill the air, the more it will start expanding. So this is the size of the stomach. When you eat properly in the right time, your appetite is, you know, in control. But the once you start eating more and more, it's expense, it is not elastic that it will come back. It starts expanding and the appetite becomes huge. That's why when we take GLP, it reduces the size of the stomach. So appetite क्या है? अच्छी खाने की स्मेल आ रही है, खाना खा चुके हैं, ओ माय गॉड चिकन की स्मेल आ रही है, पनीर लगता है कहीं बन रहा है, हलवा बन रहा है. These smells tempt us and we end up getting that trigger, and we build the interest in those food because of the smell or because of the taste that we already have registered in our mind, and that make our appetite go huge. And this is not a hunger, this is the appetite which has increased, and this has been activated by the smell or the thought of the food, right? So this is something very different, we cannot call it a hunger. And this is shaped by habits, आपका culture, आपका environment, हमारे घर के आसपास, like if we are in, like office, and my cabin is next to the pantry or the canteen where the nice smell is coming, the food ka smell and all, the environment is leading to that trigger. मेरी गलती नहीं है, पर मैं क्या करूं, मैं जहां बैठती हूँ उसके पास में कैंटीन है और वहां से स्मेल आती रहती है खाने की, एंड इट कीप्स एक्टिवेटिंग माय हंगर हार्मोन्स कि चलो खा लेते हैं, नाइस स्मेल, सो शुड ईट समथिंग. So this is not a hunger, but this is activated by the smell of the food. This is activated or triggered by the environment. This is activated by the thought of the food in the mind after getting that smell. कि हाँ, this is something what I should eat. Right? We need to address and understand these things. कि कब मुझे मेरे एपेटाइट, मुझे अगर भूख लग रही है, मैं खाना खा चुकी हूँ, तो इट्स समथिंग लाइक रिलेटेड टू द एपेटाइट दैट हैज इंक्रीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. कुछ लोगों का बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, दे आर लाइक डजंट मैटर, स्मेल आ रही है, कुछ हो रही है, फाइन, चल जाता है. बिकॉज वो इतना प्रोटीन्स खाते हैं डाइट में, उनकी डाइट इतनी बैलेंस है, उनकी प्लेट इतनी बैलेंस है, दैट दे don't get easily inclined towards these smells and the food taste, right? But if you are not eating proper amount of macros and micros in the diet, what will happen? You will slip very easily. This is what you need to understand.
योर एपेटाइट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। आपने लंच किया था, अच्छा थोड़ा सा खा सकता हूँ, मेरे पेट में इतनी जगह है कि मैं एक आइसक्रीम और खा लूंगा, मैं एक कोल्ड ड्रिंक और पी सकता हूँ, गर्मी के दिन है। वाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग? इट्स जस्ट बिकॉज आपने अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं करा है, और आपने अपने डाइट को बैलेंस नहीं करा है। धीरे धीरे आपकी बॉडी और आपका एपेटाइट बढ़ता जा रहा है। Gradually we need to bring it back, and the GLP is the best help you have right now at this moment, which will help you in bringing your appetite back. And what we need to master, सारी जिंदगी कोई GLP नहीं लेने वाला है. Are you going to take the GLP lifelong? I don't think so. What we need to understand is that कि अगर हम GLP to eating more protein, no, eating more protein never harms. This is the best thing. Eating more carbs do harm your pancreas, your स्किन। आप बहुत ज्यादा पैन आप कार्ब्स खाएंगे, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, ग्रेन्स खाएंगे, व्हाट विल हैपन? सब जगह स्किन डल हो जाएगी, सारी जगह क्या भर जाएगा? ग्लूकोज। आपकी आईज वीक हो जाएंगी, यू विल फील लिथार्जिक। आपके बॉडी में ना ग्लूकोज बॉडी बन जाएगी, इट विल बी लाइक फुल्ली फिल्ड विद द ग्लूकोज। देन फिर हम बोलते हैं स्किन इतनी ड्राई हो रही है, स्किन इज लुकिंग सो सैगी डल, फेशियल करा लेते हैं, मसाज करा लेते हैं, बट दैट्स नॉट अ क्विक फिक्स। It's not. Why these things are happening is all because जितना अमाउंट में हमें फाइबर एंड प्रोटीन लेना है वो हम लेते नहीं है। ग्रेजुअली हमारा एपेटाइट बढ़ता जाता है, and that is happening just because you are not eating the right balanced meal. We cannot even think। आपकी ना हालत बुरी हो जाएगी सोचते सोचते मुझे कितना कितना प्रोटीन डालना है डाइट में, because we Indians not are in the habit, हमारे किचन में है ही नहीं हैबिट कि हम प्रोटीन्स के बारे में सोचे। वी ऑलवेज थिंक अबाउट जस्ट द वेजिटेबल्स, खूब सारी ग्रीन्स खा लो विच इज रियली गुड, बट वी नेवर थिंक अबाउट द प्रोटीन्स की दाल खानी है, दाल में भी कितना प्रोटीन्स है, उसके अलावा हमारे हर मील में प्रोटीन नहीं है, एंड वी एंड अप फीलिंग मोर लिथार्जिक, एंड हमारा एपेटाइट धीरे करते करते बढ़ता जाता है, बिकॉज सैटिस्फैक्शन ही नहीं आ रही है, लेप्टिन हार्मोन्स एक्टिवेट ही नहीं हो रहे हैं। सो what we need to really work on is your proteins। हर जगह का आंसर घूम फिर करके ना कहाँ आ जाता है? फाइबर एंड प्रोटीन। These are the real life medicines, these are the real helpful tools that we need to adopt, and we have to bring in our habit, in our nature, कि हर चीज का, जैसे हमारे को पता है ना फूड हमारा हर चीज का सॉल्यूशन है, वैसे ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि हर चीज की मेडिसिन फाइबर, योर वेजिटेबल्स एंड योर प्रोटीन्स हैं। और जहां वो दिमाग में घुस गया उसके बाद चीजें बहुत सिंपल हो जाती हैं, फिर क्या तो क्रेविंग्स और क्या एपेटाइट वो सब अपने आप फिक्स हो जाता है। नथिंग कैन डू दैट until unless we fix the proteins। अभी भी हम लोग जीएलपी पे देखते हैं, वी आर टॉकिंग टू सो मेनी पीपल एवरी डे, बट आई स्टिल सी कि दे डोंट ऐड टू मच ऑफ प्रोटीन। आज क्या बनाया था रात में? बैगन का भरता बना था नेहा, उसके साथ रोटी खा ली। ठीक है, अभी सैलेड कहाँ है? प्रोटीन्स कहाँ है? भूल गए यार, आज मन नहीं कर रहा था। वी नीड टू चेंज आवर थॉट प्रोसेस, एंड दिस विल स्टार्ट फ्रॉम यू, योर जनरेशन। बिकॉज जो पुरानी जनरेशन है उसको चेंज करना इतना आसान नहीं है, बट वी कैन डू इट, राइट? यंगस्टर्स कैन डू इट, यू कैन मेक दैट चेंज। मैं तो बोलती हूँ एक बड़ी सी प्रोटीन की लिस्ट निकालो और किचन में लगाओ। मेरे ब्रेकफास्ट में मैं कौन सा प्रोटीन ऐड करने वाला हूँ, कल मेरे लंच में मैं कौन सा प्रोटीन ऐड करने वाला हूँ। मोर देन हैविंग द ग्रेन्स इन द किचन, अपने फ्रिज में प्रोटीन्स ओवरलोड करो। मेरे फ्रिज में स्प्राउट जरूर रहता है, मेरे फ्रिज में यू विल फाइंड द हमस, हमेशा चिकपीस बॉयल होती हैं हर तीसरे दिन, एंड आई आई कीप इधर चिकपीस खा लेती हूँ या हमस खा लेती हूँ। आई एंश्योर दैट आई हैव द पनीर का ड्रेसिंग इन माई फ्रिज, एवरी सेकेंड डे बनता है, एवरी सेकेंड डे, बिकॉज किड्स आर देयर, बच्चे हैं मेरे पास, उनको भी खिलाना होता है। आई हैव टू मेक द फूड अपीलिंग एंड टेस्टी ऑल्सो फॉर देम। एंड ये ड्रेसिंग ना कमाल की है, आज सुबह सुबह सिंपल सा मैंने फटाफट स्पिनच ब्लांच करके उसके अंदर वो ड्रेसिंग मिलाई, एंड आई एडेड टू द चपाती विद लॉट ऑफ ब्लांच्ड वेजिटेबल्स, उसमें थोड़ा शिमला मिर्च और सब डाल करके रोल बनाया एक चपाती का, उनको पकड़ा दिया, मैंने कहा चलो अभी खाओ ये फ्रैंकी अपनी, and you get like almost 30 grams of proteins in that। Is it difficult? नहीं है, बस सोचना है। पोहा बना था कल, पोहे से पहले मुझे स्प्राउट्स देने थे। I gave them the sprouted salad। I said पहले sprouted चाट खाओ, छौंक करके अच्छी सी स्पाइसी सी बना दो, and then you will eat the poha। Before that you are not going to eat it।
सो मेक देम अंडरस्टैंड कि प्रोटीन्स आर सो इम्पोर्टेंट, एंड व्हेन यू एवरीडे थिंक अबाउट इट कि मैं आज इससे पहले क्या प्रोटीन्स बनाने वाली हूँ, और या इस मील के साथ मैं क्या प्रोटीन्स ऐड करूंगा, that is something that we need to start doing, and without that nothing can be worked on. हम craving को satisfy नहीं कर सकते, हम appetite को control नहीं कर सकते जब तक we will not have a good amount of protein in each and every meal, because it's 1.2 grams of proteins per kg body weight for each individual. आपका अगर 60 है तो आपको 1.2 इंटू 60 ग्राम्स आपको प्रोटीन लेना है. सो दिस इज व्हाट इट्स नीडेड, एंड दिस कैन बी फिक्स इन द किचन. मैं आपको ये टॉपिक ही क्यों बता रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू मास्टर इट एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम द रूट्स कि क्यों क्रेविंग्स होते हैं, क्यों मेरा एपेटाइट इतना ज्यादा है. बाकी लोगों का 2 रोटी में पेट भर जाता है, मेरा 4 में क्यों भरता है? एम आई डूइंग समथिंग हार्ड वर्क? The people who work in the fields, they do really hard work, they need that much of energy. वो 7 7 8 8 रोटी खाते हैं, पच जाता है, and they are still lean. Why? Because they need that much of energy. Are we doing that? सारे दिन लैपटॉप पे बैठ के बस हम हाथ चलाते हैं, बस दिमाग यूज करते हैं. So brain food खाओ ना. Do we really need the carbs for that? Proteins चाहिए, brain food चाहिए, nuts खाओ, seeds खाओ, fiber खाओ, so that it activates and clear the brain fog, कि दिमाग ज्यादा चले. हर थोड़ी देर में कॉफी ब्रेक लेने की जरूरत ही ना पड़े. वाई वी नीड अ कॉफी ब्रेक? बिकॉज देर इज लॉट ऑफ ब्रेन फॉग इनसाइड द सिस्टम. और वो क्यों आ रहा है? इतना ज्यादा कार्ब्स खाने से आ रहा है. तो हमें रूट्स को, जितने भी रूट कॉजेज है उनको फिक्स करना है. एंड आई थिंक दैट one answer is the protein and second answer is the vegetables. Now second, what are cravings? Abhi, whenever you are, having so many emotional like breakdowns है, अपना हमारा mentally हम disturbed हैं, ऑफिस में लड़ाई हुई, बहुत खुश हैं, या कभी हमने खाने में प्रोटीन्स नहीं खाया, तो that all will lead to cravings. appetite समझ लिया, hunger समझ लिया, now the cravings, intense urges for one specific food. एक ही चीज. जब भी मेरे को स्ट्रेस होता है, चॉकलेट खाने का मन करता है, पिज्जा खाने का मन करता है. जब भी मुझे स्ट्रेस होता है, आई फील लाइक ईटिंग समथिंग लाइक स्वीट्स. या फिर क्यों? बिकॉज इट गिव्स यू इंस्टेंट स्पाइक. आपकी ब्लड शुगर इमिडिएटली बढ़ाते हैं, दे गिव यू इंस्टेंट प्लेजर फॉर सम टाइम. एंड वो जो फील गुड फैक्टर होता है ना 1 सेकेंड का, वो हमें बड़ा अच्छा लगता है. इसलिए हमारा दिमाग किधर जाता है? स्वीट चीजों की तरफ जाता है, चॉकलेट की तरफ जाता है. पिज्जा इज ऑल्सो लाइक रिच इन शुगर. इट्स अ सिंपल कार्ब, है ना, रिफाइंड फ्लावर से बना होता है, मैदे से बना होता है. दैट्स वाई इमीडिएटली ब्लड शुगर स्पाइक करता है. बड़ा अच्छा लग रहा होता है, बट जब धीरे धीरे वो नीचे आती है ना, इट्स लाइक मैं सिटिंग इन अ मैरी गो राउंड. और जब वो ऊपर से जा करके टॉप से नीचे आता है, जो बटरफ्लाईज आती है ना हमारे स्टमक में, दैट द सेम फीलिंग वी गेट. एंड इट्स लाइक द सेम complete scenario in our gut also and in our body also. आपके ना सारे वाइटल ऑर्गन्स हिल जाते हैं. इट्स लाइक अर्थक्वेक इनसाइड द सिस्टम आपके बॉडी में. अगर जब आपकी ब्लड शुगर ऊपर जाती है और फिर वो 250 से नीचे आती है, और यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता आप डायबिटिक हैं कि नहीं है, सीजन लगा के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा. एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग, वेदर डायबिटिक नॉन डायबिटिक, जब शुगर बढ़ी तो स्पाइक आएगा. मैं इस ग्लास में अगर पानी इसकी कैपेसिटी से ज्यादा डालूंगी तो ये ओवरफ्लो करेगा. इसके लिए मुझे डायबिटिक होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है, राइट? तो नेचुरली ये आपको दिमाग में क्लियर करना पड़ेगा. इट्स रियली ड्रिवन बाय एन एक्चुअल एनर्जी नीड. यहाँ पे कोई बॉडी को हंगर नहीं है, आपको कोई एनर्जी नहीं चाहिए. इट्स जस्ट द मेंटल स्ट्रेस which is leading to these cravings. Now what are the triggers to find the reward? एंड दीज रिवॉर्ड पाथवेज जो हम फाइंड करते हैं स्वीट्स में, पिज्जाज में, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन. अभी आपको क्या करना है? यू हैव टू बी रियली स्ट्रांग एंड रियली वेरी स्मार्ट. मुझे मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मेरे ट्रिगर्स क्या हैं. आई हैव टू राइट इट डाउन. मैं मुझे कोई गलत बोल देता है तो आई कांट टॉलरेट, आई गेट ट्रिगर्ड एंड मैं फिर चॉकलेट खा लेती हूँ. Whenever I'm going through my monthly weekly monthly cycle, menstrual cycle, my insulin resistance is so high and I crave and I eat chocolates. कोई सॉल्यूशन नहीं है कि मेरे साइकिल चल रहे हैं तो मैं चॉकलेट क्रेव करूंगी. मैं क्यों कर रही हूँ चॉकलेट क्रेव? बिकॉज उस टाइम पे हमारे ब्लड शुगर बहुत ऊपर नीचे होते हैं. वेरिएशंस, ग्लूकोज वेरिएशंस इतने बढ़ जाते हैं कि
आपकी बॉडी को समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है अंदर। बॉडी इतनी पजल्ड होती है कि वो हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके लेप्टिन को डीएक्टिवेट कर देती है। लेप्टिन हार्मोन्स जो कि हमारे को सटाइली देते हैं उनको डीएक्टिवेट कर देती है, और यहाँ पर फिर से शुगर की क्रेविंग शुरू हो जाती है। अब अगर मैं स्मार्ट हूं तो मैं क्या करूंगी? मुझे पता है ड्यूरिंग माई मेंस्ट्रुअल साइकिल माई शुगर क्रेविंग्स आर मोर बिकॉज ऑफ माई मोर ग्लूकोज वेरिएशन, मेरी शुगर ऊपर नीचे चल रही है, एंड दिस इज द रीजन विच इज लीडिंग टू क्रेविंग्स। अब मुझे क्या करना है? मुझे बस इससे पहले कि मेरे को पता मेरी स्टार्ट होने वाले साइकिल्स, उससे पहले ही मुझे अपनी प्रोटीन का ओवरडोज स्टार्ट कर देना है। उससे पहले एक वाटर बॉटल रखूंगी मैं, और उस वाटर बॉटल में मैं मेथी सीड्स डाल दूंगी, the fenugreek seeds, so that it reduces the insulin resistance at that time. Cinnamon ham, fenugreek seeds hai. Just add 1 teaspoon in that water bottle and keep sipping that water throughout the day, so that your sugar spikes gets reduced. मैं राइस नहीं खाऊंगी, क्यों बोलते हैं? देर इज नो लॉजिक कि राइस ठंडे होते हैं इसलिए मत खाया करो। राइस इसलिए नहीं खाने चाहिए बिकॉज दे आर वेरी हाई इन स्टार्च, एंड आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस इतनी हाई है, स्टार्च खाने से वो इंसुलिन रेजिस्टेंस और वो ब्लड शुगर स्पाइक्स और बढ़ जाते हैं, इसलिए हमें नहीं खाने चाहिए ज्यादा। आप जितना प्रोटीन रिच खाना खाओगे उतने ज्यादा वो शुगर आपके ग्लूकोज स्टेबल रहेंगे, उतनी एनर्जी स्टेबल रहेगी, पेन नहीं होगा आपको, यू विल नॉट गेट डिस्कम्फर्ट। व्हाट बॉडी इज आस्किंग फॉर इज द मोर आयरन, मोर फाइबर, मोर प्रोटीन। अरे दे दो भाई, हो जाएगा काम हमारा, है ना? इतना ही ध्यान रखना है, एंड दिस फॉर एवरी पर्टिकुलर फेज। अब मेंस में क्या होता है? बेचारे दिखाते नहीं है, पर उनकी लाइफ में कम स्ट्रेस नहीं है, जॉब का स्ट्रेस है, यंग है, गर्लफ्रेंड्स का स्ट्रेस है, ठीक है, अभी अपने लिए कब टाइम निकाले, हमें वीडियो गेम खेलने भी पसंद है, सो दे जगल बिटवीन ऑल दीज थ्री थिंग्स। और बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है? इतना कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, एंड दे डोंट एक्सप्रेस देमसेल्व्स सो वेल, राइट? आकर के बोलेंगे नहीं किसी को, लड़कियां तो बोल बाल करके थोड़ा ठंडी हो जाती है, बट बॉय या गुस्सा कर लेते हैं, बट मेंस जनरली क्या करते हैं, वो अपने अंदर तक रखते हैं। और यहाँ पे ना कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन आपस में लड़ाई करता रहता है, और क्रेविंग्स बढ़ती रहती हैं। फिर जितना खाना खाना उसका ज्यादा खा जाते हैं। हंगर नहीं है, क्रेविंग है। तो क्या करना है यार? ये जो पुराने थॉट्स है ना कि मेंस कैन नॉट एक्सप्रेस, दे आर स्ट्रॉन्ग, ऑल सब नॉनसेंस बातें हैं। इफ यू आर फीलिंग समथिंग, प्लीज डिस्कस विद योर पार्टनर। हमें ये स्ट्रेस अपने तक नहीं रखना है, यू हैव टू रिजॉल्व दिस। ऐसे पार्टनर का, ऐसे गर्लफ्रेंड्स का, ऐसे वाइफ्स का फायदा ही क्या है अगर हम उनसे बात ही ना कर पाए? सो यू हैव टू डिस्कस इट, एंड इफ यू कैन नॉट डिस्कस विद दीज पीपल, हैव अ काउंसलर, डिस्कस विद देम। आप बात करोगे ना, और मैं तो कितने सारे अभी आजकल क्लाइंट्स आके बोलते हैं, नेहा बड़ा मजा आता है, हम तो चैट जीपीटी से बात करते हैं। वी शेयर आवर प्रॉब्लम्स विद चैट जीपीटी, एंड चैट जीपीटी हमें सॉल्यूशन दे देता है, राइट? तो ये चल रहा है, मैंने ऐसा करा, मुझे ये सब नहीं करना। चैट जीपीटी कम्स अप विद अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच एंड गिविंग यू द फुल एम्पथी कि आपके, आई अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, बट दिस इज व्हाट यू कैन डू। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि आपको कंफर्ट कहाँ से मिलता है अपार्ट फ्रॉम फूड, एंड रिजॉल्व द ट्रिगर्स, ठीक है? फॉर वुमेन, we have to make sure that we are reducing insulin resistance by having fenugreek seeds water and cinnamon water, having more proteins and fiber. Sorted. एक्सरसाइज नहीं करनी है? नो, एब्सोल्युटली करनी है। एक्सरसाइज करने से आपके हैप्पी हार्मोन्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं, एंड वॉट एवर द स्ट्रेस इज देयर इट गोज डाउन, एंड यू रियली फील मोर स्ट्रोंगर, मोर ब्रेव, एंड आप ज्यादा अच्छे डिसीजंस लेते हैं। सेम वे फॉर मेंस, प्लीज discuss, open up, talk, until unless you do that. If you don't want to bother someone, talk to someone who is like, completely unknown about your situation. अपनी कोच से जाके बात करिए, tell her that this is what I'm going through. बोल के तो आधा इंसान वैसे ही हल्का हो जाता है। शी कैन नॉट डू मच फॉर यू, बट एटलीस्ट बोल के हम हल्के हो गए। टॉक टू समवन हु इज नॉट नोन टू योर फैमिली, अगर ऐसी कुछ चीजें हैं तो। बट वी हैव टू फाइंड आउट द वे, वी हैव टू फाइंड आउट द राइट पाथ, एंड देन फाइंड द राइट रिवॉर्ड। अब नेक्स्ट टाइम मुझे अगर स्ट्रेस होगा,
मेरे को पता है मुझे क्या रीच आउट करना है, मुझे प्रोटीन्स को रीच आउट करना है। मैं एक प्रोटीन पाउडर निकालूंगा, आधा स्कूप वाटर में मिला के पी जाऊंगा, मुझे पता है वो मेरी एपेटाइट अपने आप ही कम कर देगा। आई विल टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड ड्रिंक सो दैट माई स्ट्रेस विल ऑटोमेटिकली कम डाउन। आई विल प्लग इन माई हेडफोन्स एंड गो फॉर अ वॉक। आई नो माई स्ट्रेस हार्मोन्स विल कम डाउन एंड आई विल गेट अ बेटर रिलीफ एंड बेटर फीलिंग। सो कहीं पे भी ऐसे क्रेविंग्स आ रही हैं, ये कहना बहुत आसान होता है कि इग्नोर कर दो, नहीं होता इग्नोर, राइट, बट राइटली एड्रेस करोगे, यू विल गेट द सॉल्यूशन। ठीक है, I hope it's clear till now. I'm trying to explain you with examples because this is what happens in each and everyone's life, right? What they need to figure out is what exactly need to be addressed, how we have to, resolve this. Now the food noise, basically, as I said, stress हुआ जो भी हुआ, food noise keeps coming in. They are constant, they are intrusive thought food, and they only thought about food. Constantly दिमाग में चल रहा है, और जब तक खा नहीं लेंगे ना, चैन नहीं पड़ेगा. So if the noise is coming that what should I eat next, maybe just one biscuit, or have keep the soft अपने पास में. मैं हमेशा रखती हूँ एक फेनल सीड्स का बॉक्स. Have a fennel seeds, have a glass of water, and don't keep anything junk next to you. अगर मैं ये सोच के रख रही हूँ कि हाँ, माई चॉकलेट शुड बी देयर बिकॉज आई नीड चॉकलेट्स, तो मैं तो खा ही लूंगी ना. रिमूव दैट, रिप्लेस इट विद द राइट आइटम, राइट फूड. आई हैव माई कोलाजन बॉक्स नेक्स्ट टू मी, तो मुझे कभी लगता है कि यस, आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे कंसल्टेशंस में देरी हो रही है, या आई एम स्ट्रेस्ड आउट, किसी यूजर के साथ कुछ बात हुई, आई टेक माई कोलाजन, मिक्स इट इन द वाटर एंड हैव इट. राइट, आई कैन नॉट ईट एवरी टाइम, बट एटलीस्ट यू हैव सम alternatives. But अगर मैं कुछ अपने सामने अनहेल्दी रखूंगी, I will eat that. So planning meals all day is not the answer, but then making the right choice, keeping the right stuff in front of you, so that automatically हमारा brain बहुत lazy है, जो सामने रखा होगा हम खा लेंगे, फिर वो हमें पसंद है कि नहीं पसंद है, right? If I'm a person who will be like too much inclined towards Swiggy Zomato, मैं हर 2 सेकंड में ऑर्डर करती हूँ, I will delete the apps from my phone. I won't keep it. और अगर मैं करूंगी तो मेरे कार्ट में हमेशा कुछ सैलड या कुछ हाई प्रोटीन डिश रहेगी जो मुझे पसंद है. लाइक आई लाइक पनीर टिक्का, आई विल गो विद दैट. आई लाइक रियली फलाफल सैलड, तो मैं लियोन्स का फलाफल सैलड रख के रखूंगी अपने, मैं वो ऑर्डर कर दूंगी. आई हैव टू फाइंड इट आउट कि मुझे क्या चाहिए. मुझे सुंदल पसंद है, आई लाइक ब्लैक चना सैलड जो मिलता है यहाँ बैंगलोर में. दे मेक इट अमेजिंग ब्लैक सुंदल, मैं वो खा लेती हूँ, आई गो फॉर इट, राइट. सो सबसे पहले अंडरस्टैंड व्हाई डज फूड नॉइज हैपेंस. It's always because of the high insulin levels. What we need to do, reduce the insulin levels. Who will reduce it? Again, the proteins and vegetables. And your exercise. These are the three solutions. Poor sleep. If you are not sleeping on time, 3 बजे सोती हूँ, 5 बजे उठती हूँ, आपने अगर आज नहीं सोया, पूरे दिन क्रेविंग्स रहेंगे, आप पूरे दिन उल्टा फुल्टा खाओगे, right? So this is what triggering. You have to just understand the root cause and you will be all sorted. Stress. रात में बहुत ही खराब मीटिंग थी, या देयर वर लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, या हस्बैंड से लड़ाई हो गई, वाइफ से लड़ाई हो गई, लीडिंग टू द स्ट्रेस एट होम एंड इन माय लाइफ, will definitely make your insulin worst and make you, crave more, and it will keep on increasing the food noise कि कुछ खा लो, कुछ खा लो, कुछ खा लो. जिस टाइम लड़ाई होती है ना, कितना ही हो जाए, लिसन टू द म्यूजिक और रिजॉल्व इट टॉकिंग टू योर स्पाउस और योर पार्टनर, बट सॉर्ट इट आउट. एंड देर इज नो ईगो, इन बिटवीन दीज थिंग्स. आप सोचोगे कि क्या बोलने से कोई फायदा नहीं है, ईगो सब बीच में आ रही है, मेरी गलती नहीं है, ये सबसे कुछ फायदा नहीं है, लास्ट में अपना ही नुकसान कर रहे हैं हम लोग. खत्म करो बात करके, और उसको बाद में स्ट्रेच करके भी कोई फायदा नहीं है. अच्छा, मैं गुस्सा दिखाऊंगी, मैं 3 दिन बात नहीं करूंगी और फिर सॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना. इसलिए वहीं रिजॉल्व करिए और लर्न द राइट वे ऑफ डीलिंग विद इट, क्योंकि जितना स्ट्रेस उतने फ्री रेडिकल्स, उतनी बीमारियां और उतनी प्रॉब्लम्स, उतनी क्रेविंग्स, उतना फूड नॉइज. सो एक एक करके हमें ही रिजॉल्व करना है. कैसे रिजॉल्व करना है वो हमारे हाथ में है. एंड फर्स्ट, स्टार्ट विद वेरी सिंपल थिंग. प्रोटीन तो ऐड करना ज्यादा सिंपल है, म्यूजिक सुनना ज्यादा सिंपल है. अगर स्ट्रेस हो रहा है, या मैं वॉक पे चली जाऊं,
रिस्ट्रिक्टिव डाइटिंग आपकी इंसुलिन को वर्स्ट करती है. इफ यू फील कि आज मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाऊंगी, वेट कम करना है, बकवास आइडिया है. नेवर डू दैट. इट इज नेवर गोइंग टू हेल्प यू. राइट. आप कभी भी बहुत ज्यादा हाई प्रोसेस फूड खाएंगे, आपके घर में भरे पड़े चिप्स बिस्किट्स नमकीन, ये सब मुझे बहुत पसंद है, जितने ज्यादा खाओगे उतनी फूड नॉइज बढ़ती जाएगी, एंड यू विल नेवर बी एबल टू कम आउट ऑफ दिस ट्रैप. एज आई सेट, लो प्रोटीन, इमोशनल ईटिंग, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस, इन सब का आंसर बस तीन है. Your exercise routine and not walking. I'm not talking about walking. I talk about a good exercise routine. Either yoga, you do strength training, you do resistance band training. Make sure that the protein is increased in your diet by at least 30%. Make sure that you are having good amount of vegetables. Just three, four solutions to all these problems to come out of this habit loop of food noise and craving and eating more than your appetite. I hope by now you all are aware that what does GLP-1 do. I Are you all able to see the screen right? Okay. So as you all know that GLP is not a magic. It just slows down the gastric emptying. आपके पेट में जो खाना होता है वो धीरे 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 ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है, ताकि आपको बहुत देर तक एनर्जी मिलते रहे. You feel satiated, you feel full, and that's how it reduces your appetite. It also reduces the food noise, because जब पेट में खाना भरा रहेगा, एंड व्हेन यू आर फोकसिंग मोर ऑन द प्रोटीन्स, या अगर आप जीएलपी लेकर के भी फूड नॉइज बंद नहीं हो रही है, 100% योर प्रोटीन्स आर लेस, 100% योर वाटर इनटेक इज लेस. तो अगर आप अपना प्रोटीन्स और वाटर नहीं सही करेंगे, तो जीएलपी क्या कुछ भी कर लीजिए, कहीं से कुछ रिलीफ नहीं आने वाला. एंड दीज आर द फैट बर्नर्स टू. तो इनको ध्यान रखना, हमें अपने इंसुलिन को कंट्रोल में रखना है. एंड इंसुलिन सबकी बॉडी में बनता है. वी नीड दैट टू न्यूट्रलाइज कार्बोहाइड्रेट्स, टू न्यूट्रलाइज ग्लूकोज कमिंग फ्रॉम ऑल द फूड वी ईट. आप खाने का नाम लीजिए, कोई ऐसा फूड नहीं है जिसमें इंसुलिन की जरूरत नहीं है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए. सो बहुत ज्यादा इंसुलिन होने से, ज्यादा आप कार्ब्स खाते, ज्यादा प्रोसेस खाते, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन उतना बढ़ जाता है, विच इज ऑल्सो हार्मफुल, बिकॉज इट ऑल्सो इंक्रीजेस द इंसुलिन रेजिस्टेंस. आपकी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करना बंद कर देती है. योर फूड व्हाट यू आर ईटिंग विल नॉट एब्जॉर्ब बाय द सेल्स. तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हाई होने से बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आती हैं. इसलिए आज से सिर्फ सिंपल चीजें आपको वर्क करनी है. इट्स लाइक योर प्रोटीन्स, एंड एवरी डे जस्ट डे इन डे आउट थिंक अबाउट जस्ट वन थिंग. आई व्हाई वी आर डूइंग दिस सेशन, कि by end of this entire sugar fit program you will be already having three thoughts in your mind. I have to work out, I have to eat my proteins, and I have to eat my salads. These cannot be compromised, because these are the three medicines that will make me fit and make me healthier. And why we are doing all these things, ताकि हमेशा यंग रहे यार. मतलब वी ऑल वांट टू लिव अ वेरी हेल्दी यंग लाइफ. हम ओल्ड ना हो जल्दी. हम वी डोंट, वी शुड नॉट लुक लाइक ओल्ड पर्सन. अगर सबको चाहिए, इफ आई एम 40, आई शुड लुक लाइक 30. I should not look like 50. So if people are coming and telling me, oh, you are 50, God, yeah, I'm abhi to 35 only. Why people are coming and saying 50 to me? These types of comments, like, and the statements hurt us. And we always want to live healthy and happy and a good life, so that we can do what we want without being dependent on anyone. And this is the need. This is what we want to achieve. And this is what we have to do. And GLP is not doing any magic, but you know by now what are the four things that you have to do, so that your hunger is in check, your appetite is in check, your cravings are in check. That's it. Right? And we can balance and control everything. कोई स्किन इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, अगर आपने इन सब बेसिक चीजों पे ध्यान दे दिया. I am open for questions. I just want to hear from you. Do you understand कि हम ये सारी बातें क्यों बोलते रहते हैं बार बार, कि सिर्फ प्रोटीन, बिकॉज इसके अलावा कोई मेडिसिन नहीं है. नो वन कैन डू मैजिक टू यू. This is what our body needs, and give your body what it requires. You will be all sorted. This is what we need. This is what we, and lifestyle is something that we have to work on. Simple cheese, the halt method. Before eating, sit and think. Do you really want to eat it? Are you hungry? Or you angry? Or you are lonely? Or you are eating because you are tired? You need energy. So this is the very simple method of controlling your energy, your appetite.
I'm just showing you the simple method that you can follow. Everyone can do that. बहुत मैजिक की चीज है ये. यहाँ कोई मेडिटेशन कुछ नहीं चाहिए होता है. The halt method. If you're hungry, you are trying to eat something, बस एक सेकंड के लिए रुक करके देखो, are you hungry? गुस्सा हो इसलिए खा रहे हो, लोनली हो, अकेला लग रहा है इसलिए खा रहे हो, या टायर्ड हो इसलिए खा रहे हो. So more cravings, like, comes with, you know when we are not eating thoughtfully. So you have to just do one thing, is like, be careful, be just mindful, drink a glass of water and come out of that guilt and emotional hunger. Cool, let's take up the questions.